Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss the example of curve tracing. See here, trace the curve y square in bracket 2a minus x equals to x cube. Find the area enclosed between the curve and its asymptote. So we have to find area and also trace this curve. So first we have to trace curve and then find area. So here from given equation of curve, given y square 2a minus x is equals to x cube. This is our equation of curve. Suppose it is equation number 1. If I open this bracket, multiply this y square, then it is a 2a y square minus x y square is equals to x cube. Now one by one to trace the curve, ये सभी पॉइंट्स अगर आपको नोन है तो इन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं. सो हर एक पॉइंट को हमें डिस्कस करना है. तो फर्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री. पहले क्या करोगे, वी हैव टू चेक इवन पावर ऑफ एक्स और वाई. अगर इसमें इवन पावर एग्जिस्ट है तो हमारा कर्व किसको सिमेट्रिक के नोन हो जाएगा. अगर वो नहीं है तो देन एक्स और वाई को इंटरचेंज करके देखो, वो भी नहीं हो रहा है तो देन एक्स रिप्लेस बाय माइनस एक्स, वाई रिप्लेस बाय माइनस वाई. ये अगर होता है तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक. सो इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करो और बताओ किसका इवन पावर है. वाई स्क्वायर है, मतलब वाई का इवन पावर है. तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिंस इक्वेशन 1 contain even power of y. So if curve contain even power of y, this implies curve is symmetric about x-axis. If it contain even power of y, then our curve is symmetric about x-axis. Now second, we have to check nature of origin. So nature of origin check करने के लिए first of all we have to check whether our curve is passing through origin or not. Yeah. If you observe this equation, it does not contain any constant term. Constant term means simply we want plus constant without contain any variable. So here, if we observe this equation, first term contain y, second term contain x, y, and right hand side also contain x. That means each term contain variable. So there is no term without containing constant. So we can say since equation 1 does not contain any constant term, since equation 1 does not contain any constant term, this implies curve is passing through 0, 0. That is nothing but origin. If our curve is passing through origin, then take nature of origin. So if we take lowest degree term from given equation of curve and we have to equate to 0. So in this equation 1, here first term degree is 2, second term degree is 3, and third term degree is 3. That means lowest degree term is 2a y square. And if you know that the lowest degree term is this one, then we have to equate that lowest degree term to 0. And here 2 is a, we know that 2 is a number that is not equals to 0, a is not equals to 0. So if 2a is not equals to 0, then divide this term, so simply remaining is y square equals to 0. So this implies y equals to 0, 0. That means we get two tangents, y equals to 0, y equals to 0. Both tangents are real and equal. Both tangents can y equals to 0. So if we get two tangents, both are real and equal, imply origin is cusp. अगर cusp है तो that means वो जो origin के ऊपर डायग्राम रहेगा उसका शेप किस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से. ठीक है. अब ये कौन से साइड में, तो यहाँ पे हमें क्या नोन है कि अवर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. सो एक्स एक्सिस के अबव बिलो अगर सेम पार्ट है तो ये जो कर्व का शेप है या इधर एक्स एक्सिस के राइट साइड में इस तरह से हो सकता है या फिर इस तरह से हो सकता है. एक्सिस क्या ये कर्व के जो जो दो यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना इस तरह से, ये इन्फिनिटी तक के जा रहे हैं कि कहीं पे स्टॉप हो रहा है, मतलब कर्व एट इन्फिनिटी पे जा रहा है कि यहाँ स्टॉप हो रहा है, वो कैसे निकालोगे.
सो वी नो दैट अगर कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है, वहां से हमें क्या पता चलेगा कि ये कर्व ऐसे ही स्टॉप हो रहा है कि कहीं तो भी और कहीं पे कनेक्ट हो रहा है। सो अगर हमें कोई पॉइंट मिलता है तो मे बी ये ऐसे स्टॉप हो सकता है, अगर ये पॉइंट नहीं मिलता है तो मे बी ये अप टू इंफिनिटी तक के जा सकते हैं। तो नेक्स्ट इज वी हैव टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। So point of intersection, that means we know that our curve is symmetric about x-axis. तो ये x-axis को symmetric है तो इस above below इसके रहेगा। Second, ये x-axis का equation रहता है y equals to 0. Second is a curve. So actually we are finding point of intersection of curve and x-axis. तो x-axis और point of given curve इन दोनों के अगर point of intersection निकालना है तो that means we have to solve इक्वेशन साइमल्टेनियसली, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कौन सा इक्वेशन, एक एक्स इक्वल्स एक्स एक्सिस एंड गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, इन दोनों को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज नथिंग बट y इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर y इक्वल्स टू 0 है तो डायरेक्टली वी हैव टू पुट y इक्वल्स टू 0 इन given equation of curve so that we get point of intersection. If we put y equals to 0, put y equals to 0 in equation 1, that is given equation of curve. So here if we put y equals to 0, then left hand side is completely 0, we get x cube equals to 0. So when we put y equals to 0 in equation 1, then we get x cube equals to 0. This implies x equals to 0. So that means point of intersection are 0, 0. So therefore point of intersections are 0, 0. इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक ही पॉइंट मिला तो या ये जो x एक्सिस को वो कर्व यहाँ पे हमने कहा था कि वो ओरिजिन को ही सिर्फ कट होगा, ये जो यहाँ पे स्टॉप नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट मिला है। अगर ये कहीं पे स्टॉप होता था या फिर कहीं पे अदर पॉइंट में कर्व इंटरसेक्ट, एक्स एक्सिस को कहीं अदर पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता था तो वो पॉइंट हमें मिलता था, बट अगर सिंगल पॉइंट मिला है दैट मींस दिस कर्व इंटरसेक्ट टू एक्स एक्सिस ओनली एट 0, 0. सो ये अनदर कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड असिम्प्टोट। अब असिम्प्टोट की हेल्प से हमें क्या नोन होगा, सपोज ये अगर कस्प है और कर्व कैसा है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो आइदर ये कस्प इस साइड में रह सकता है या फिर इस साइड में। तो ओनली हमें नोन क्या हो गया कि ये फिर से कहीं पे एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, बट दोनों साइड से ये इंफिनिटी को जा रहा है कि एक ही साइड से, तो वो हमें कैसे नोन होगा, यूजिंग असिम्प्टोट। सपोज असिम्प्टोट दोनों साइड से मिल गया तो दैट मीन्स ये टेंजेंट एट इंफिनिटी दोनों साइड से है, तो ये कर्व इंफिनिटी को दोनों साइड से जा सकता है। So to find asymptote from given equation of curve, we have to write either y equals to function of x or x equals to function of y. So if we observe this equation 1, so it is easy to write y equals to. So here y square is equals to x cube divided by 2a minus x. This implies y is equals to plus minus under root of x cube divided by 2a minus x. At x equals to a, if we put x equals to 2a, then we get y tending to plus minus infinity. So अगर ये infinity को टेंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू ट्वाइस a रहेगी तब ये जो x equals to ट्वाइस a लाइन है वो y जो कर्व है x equals to ट्वाइस a, this line intersect the curve at infinity, क्योंकि y nothing but क्या है हमारा कर्व। So here it is representing asymptote क्योंकि ये क्या है, it is a straight line, it intersect curve at infinity को, so it is a asymptote। so यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा x equals to twice a, x equals to twice a is a tangent at infinity, that's why it is called asymptote। and if we draw this term so we get graph x equals to twice a straight line। और ये कैसे हो जाएगा, ये कर्व को ऐसे पैरेलल अप टू कहीं तो भी इंफिनिटी पे जाके ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इतना नियरेस्ट आएगा कि एट इंफिनिटी पे इनका डिस्टेंस 0 होगा, दैट मींस कर्व क्या करेगा, इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। अगर राइट साइड में सिर्फ असिम्प्टोट है और लेफ्ट साइड में कोई असिम्प्टोट नहीं, इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड में कर्व का शेप नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि ये ऐसे ही डायग्राम आने वाला है। अगर लेफ्ट साइड में रहता था कर्व तो ऑब्वियसली वहां पे भी एक असिम्प्टोट मिलता था। और सेकेंड थिंग इज, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड
एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो चेक करने के लिए, मतलब यहाँ पे मे भी असिम्प्टोट है कि नहीं है ये नोन नहीं है, बट हमें अगर चेक करना है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कोई टर्म नहीं है, वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसी कर्व में देखो यहाँ पे x का कोई भी निगेटिव वैल्यू पुट अप करके देखो, when we put x equals to any negative value, any value आप पुट अप करके देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ये निगेटिव टर्म आएगा, और अंडर रूट कभी भी निगेटिव टर्म का एग्जिस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी में हो जाएगा, और इमेजिनरी में तो y की वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना, जब हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो इमेजिनरी को हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, दैट मीन्स यहाँ पे x निगेटिव वैल्यू ले नहीं सकता है, और अगर x निगेटिव नहीं ले सकता है तो वो वैसे भी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आएगा ग्राफ। अब ना सी अब ये जो शेप है ना, ये कितना यहाँ पे इस तरह से कितना बाउंड हो रहा है, क्या कर रहा है, मतलब ये जो इसका शेप है ना, ये किस तरह से है, ये एग्जैक्टली फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ये जो कर्व है वी नो दैट आवर कर्व इज लाइज बिटवीन 0 to 2a, कर्व शेप यहाँ पे 0 to 2 है, बस यहाँ पे ये जो शेप है इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करने के लिए वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट्स, यहाँ पे ये पॉइंट्स निकाल के हम इस लाइन के ऊपर प्लॉट अप कर देंगे और उस हिसाब से कर्व को ज्वाइन करेंगे, दैट मीन्स हमें एग्जैक्टली ग्राफ का शेप भी मिल जाएगा। सो कर्व 0 to ट्वाइस a के बीच में, तो आप एनी x की वैल्यू इन बिटवीन 0 to 2a ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सम पॉइंट्स लिखे हैं, नॉट नेसेसरी कि यही पॉइंट्स लेके आप लोग x के करस्पॉन्डिंग y निकालो, आप एनी पॉइंट्स ले सकते हो, बस क्या होना चाहिए 0 to ट्वाइस a इसके बीच वाले पॉइंट। सो फर्स्ट इज 0, if we put x equals to 0 in this term, so we get when x is 0, so we get y equals to 0. Then second is x a by 2 in this term, then it is y equals to plus minus under root of x is a by 2, it is a by 2 cube divided by twice a minus a by 2. Simplify this term. Here it is a cube divided by 8 whole divided by, if we cross multiply this term, so it will be 3a by 2. Now this a is cancelled with this numerator a, and 8 ये 2 cancel होगा इस 8 के साथ में, तो remaining is in numerator it is a under root of a square, it is a 12. So under root of a square is a, and under root of 1 upon 12 find out कीजिए कैलसी से, तो here ये क्या है प्लस माइनस एक्चुअली, तो ये when x equals to 2a, so we get y equals to plus minus 0.298. Now next is put x equals to a. If we put x equals to a here, then it is a cube divided by twice a minus a. So twice a minus a is a, so remaining is under root of a square, that is a plus minus a. Okay. Now next, if we put x equals to 3a by 2, if here आप लोग टैली करके देखना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ, इट इज ए प्लस माइनस 2.6a, and when we put x equals to 2a, so we get y plus minus infinity. तो ना सी है, अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो पूरे पॉइंट्स को देख ऑब्जर्व करते हुए निकालना है। सो हियर फर्स्ट इज our graph is symmetric about x-axis. तो x-axis के above below same part रहेगा, it is a x-axis, that is nothing but y equals to 0 line. This is our first point. Second is curve is passing through origin. So here it is passing through origin, that is 0, 0. Third, nature is cusp. तो cusp मतलब वो shape पता है कैसे आएगा, तो then next is point of intersection is only 0, 0. Then next we have get asymptote at 2a. तो यहाँ पे एक x एक्सिस पे 2a कहीं तो भी पॉइंट होगा, यहाँ से क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन, x इक्वल्स टू 2a का ग्राफ नथिंग बट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको अगर प्लॉट करते हैं 0 to 2a, तो सपोज ये पॉइंट है a by 2, सेकेंड इज a पॉइंट, देन 3a by 2, इनका जो डिस्टेंस है वो इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया है ना, इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है ये अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इट इज 0.29, फिर नेक्स्ट में क्या हो गया 1, फिर नेक्स्ट में 2 पॉइंट, इसका मतलब क्या है ये धीरे धीरे करके वैल्यूज को इंक्रीज करते हुए जा रहा है, तो इसका जो शेप है
वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में लेस था, देन इंक्रीज होते हुए वो अप, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है बट वाई की वैल्यू एकदम से बढ़ती जा रही है। जैसे अपर का पोर्शन है सेम आपको बिलो मिलेगा, बिकॉज ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सो जैसे लेफ्ट हैंड अबो निकाला है ग्राफ, सेम वी हैव टू ड्रॉ फॉर बिलो एक्स एक्सिस। So this is our final thought corresponding to this equation. Next task is we have to find area. ये जो एरिया है कहाँ पे निकालना है? Find the area lies between curve and asymptote. इसको अगर मैं shaded portion से show करती हूँ तो here. Next is we have to find area enclosed between the curve and its asymptote. So यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया फाइंड आउट करना है। और एरिया का जो फॉर्मूला रहता है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से आता है, ताकि आपको फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली समझ में आ जाएगा यूजिंग डायग्राम। सपोज आपको अगर एक लाइन दी है, लाइन में अगर 2 to 4 ये अगर टर्म है, और इफ यू वांट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स, तो ये क्या होता है 4 - 2 = 2। अब इसी कंसेप्ट को अगर मुझे इंटीग्रल के तौर पे देखना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये सिंगल लाइन है, सो हियर वी हैव टू यूज सिंगल इंटीग्रेशन। Distance of x-axis is from 2 to 4 dx. If we solve this term, then integration of dx is x and limit is 2 to 4. Put upper limit minus of lower limit. So here we get 4 - 2 that is equals to 2. So देखो यहाँ पे ऐसे डिस्टेंस निकालो कि ये निकालो, we get same answer. अब इसी डायग्राम को ये स्ट्रेट लाइन से अगर मैं 2 डायमेंशन में डायग्राम निकालती हूँ, सपोज वी हैव गिवन रेक्टेंगल जहाँ पे x की वैल्यू है 0 to x equals to suppose it is 3 and y varies from 0 to suppose it is 2. Now see here the distance length of this side is 3 unit and height is 2 unit. अगर ये लेंथ और ब्रेथ नोन है तो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। क्या एरिया इज 2 × 3 दैट इज नथिंग बट 6। अब इसी को मुझे इंटीग्रेशन से अगर ट्राई करना होता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये डबल है 2 डायमेंशन में, तो हियर वी हैव टू यूज डबल इंटीग्रेशन। फर्स्ट इज फॉर x and here x varies from 0 to 3, so corresponding limit of x integral is 0 to 3 and y varies from 0 to 2, so y equals to 0 to 2, it is a dy and dx. Now one by one we have to integrate this term. If we integrate with respect to y, then integration of dy is y. So here 0 to 3 as it is, y limit is 0 to 2. Put upper limit minus of lower limit. So here we get 2 and next we have to integrate with respect to x. So here upper limit की वजह से यहाँ पे 2 and after integration with respect to x we get dx, limit is 0 to 3. Again put upper limit minus of lower limit, that means here we get 6. So now see here डायरेक्टली निकालने से भी वही आंसर आ रहा है और इससे भी यही आंसर आ रहा है, बट ये कैसा है रेक्टेंगल पर्टिकुलर शेप है, इसलिए आपको पता है कि इसका एरिया क्या आ सकता है, बट समटाइम्स वी गेट दिस टाइप ऑफ डायग्राम। अब इसके लिए तो आपके पास में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, सो वी हैव टू यूज डबल इंटीग्रेशन एंड फाइंड दिस एरिया। अब नाउ हियर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व, हियर एरिया इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x को अगर ऑब्जर्व करोगे तो x कैसे है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है 0 वाली और अप टू द यहाँ पे चला गया ये x equals to 2a. That means x कहाँ से कहाँ तक के वैरी हो रहा है, x vary from 0 to 2a. So area equals to x varies from 0 to 2a. Then next y को अगर ऑब्जर्व करते तो y कहाँ से कहाँ तक के बता सकते हैं इसमें देख के। देखो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेने से क्या हो जाएगा, ये जो है ना रेक्टेंगल में यहाँ पे दोनों साइड से स्ट्रेट लाइन थी, इसके वजह से आप 0 to वहां तक के ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले लिया ना तो इसका मतलब क्या है, आप ये वाला पार्ट भी ले रहे हैं, ये एक्स्ट्रा का पार्ट हमें नहीं लेना है ना। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट कब स्किप होगा, जब आप ये कर्व को भी कंसीडर करोगे, कर्व के हेल्प से अगर निकालोगे तो ये कर्व शेप में जितना एरिया है उतना ही कवर अप होगा। अदरवाइज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, पूरा जो एरिया है मतलब ये जो विदाउट शेडेड पोर्शन है ना वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उसी को अवॉइड करने के लिए नाउ सी इट
we know that our curve is symmetric about x axis, तो जितना above portion है उतना ही below portion है, तो मैं एक काम करती हूँ सिर्फ above के बारे में सोचती हूँ, और above का अगर निकल गया तो below भी same area है, so it is nothing but twice, so for total area is it twice, okay, ये twice क्यों लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ अपर साइड के बारे में सोच रही हूँ, तो below भी same रहेगा, तो above and below इन दोनों का एडिशन क्या होगा, twice, so twice integral 0 to 2x. now here this is a x axis, यहाँ से हाइट स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ से y को अगर गिनना स्टार्ट करोगे तो शेडेड रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके स्टॉप हो रहा है, अप टू दिस कर्व, मतलब y स्टार्ट फ्रॉम 0 टू दिस कर्व, सो हियर लिमिट ऑफ y स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू द कर्व, और कर्व पे अगर y इक्वल्स टू देखोगे तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल्स टू इज दिस वन, सो अप टू दिस कर्व मतलब ये आएगा अंडर रूट ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय 2a minus x, and here limit of y is in the form of x, so we have to integrate first with respect to y, क्योंकि हमें कांस्टेंट एरिया निकालना है ना, तो कांस्टेंट आंसर आना चाहिए, तो ये वेरिएबल हटाने के लिए पहले जिसके पास में वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, और देन वी हैव टू इंटीग्रेट with respect to x. So here if we integrate this term, तो integration of dy is by put upper limit minus of lower limit, तो lower limit तो वैसे ही 0 है, तो upper limit के वजह से dy आ जाएगा, और upper limit put up कर दोगे तो instead of y ये term आ जाएगी, that means if we write directly then it is a twice integral 0 to 2a, this integration is nothing but under root of x cube divided by 2a minus x dx. Here यही फॉर्मूला ऐसे न लिखते हुए आपको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे ऐसे लिख के दिया है, ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू, मतलब यहाँ पे x का लिमिट है a to b एंड हियर y dx, तो एक्चुअली ये ऐसे ही आता है क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x, सो वी हैव टू इंटीग्रेट दैट टर्म एंड दिस टर्म, तो नोट्स में अगर देखोगे तो आपको ये ऐसे शॉर्टकट फॉर्मूला मिलेगा, बट वो कंसेप्ट यहाँ से आती है, ठीक है। नाउ सी अब हमें क्या करना है, सॉल्व दिस इंटीग्रल, सेम टाइप का इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है बीटा के अंदर, जस्ट बीटा के डेफिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू शिफ्ट दिस ब्रैकेट इनटू न्यूमरेटर, सो नाउ सी इट इज ए ट्वाइस इंटीग्रल 0 to 2a x raised to power 3 अंडर x raised to power 3, और ये अंडर रूट की वजह से 1/2, so total power of x is 3/2, and if we shift this bracket into numerator then it is twice a minus x raised to power minus 1/2, because we are shifting this bracket into numerator into dx. Now to convert this integral into the definition of beta function, so we required integral 0 to 1 x raised to power m minus 1 minus x raised to power n minus 1. So 1 minus के लिए first of all we have to take this 2a outside 1 minus के लिए. So here if we take 2a outside then power is minus 1/2. So it is a 2a raised to power minus 1/2 outside. Remaining is integral 0 to 2a x raised to power 3/2 1 minus x by 2a raised to power minus 1/2 into dx. In the next step, if we put x by 2a equals to t, then from this term dx equals to twice a dt. Change the corresponding limit also. Your lower limit of x is 0. If we put x equals to 0, then we get t equals to 0. And upper limit of x is 2a. Here put x equals to 2a, then we get t equals to 1. That means area equals to twice 2a raised to power minus 1/2, constant term outside as it is, integral new limit is 0 to 1 x raised to power 3/2, but from this term we can write x is nothing but 2a into t raised to power 3/2, then x minus here 1 minus x by 2a is t raised to power minus 1/2, value of dx is 2a dt. Here 2a is constant, total power of 2a is 3/2, and here 1, 3/2 plus 1 is 5/2, and if we take outside then here 2a raised to power minus 1/2, and again we get 2a raised to power 5/2, both in the power of 2a, so we can add this power, and remaining integral is 0 to 1. Here t raised to power
3 by 2, and for definition we can write in the form of m minus 1. So here 3 by 2 we write it is a 5 by 2 minus 1, and here 1 minus t raised to the power minus half we can write 1 by 2 minus 1 dt. Here if we add this power, then it is a 2a raised to the power minus 1 by 2 plus 5 by 2. It is a 4 by 2. By definition of beta function, it is a beta of 5 by 2 comma 1 by 2. So in the next step we have to use relation between beta and gamma. So it is a 2a raised to the power 2. It is a gamma 5 by 2 into gamma of 1 by 2 divided by gamma of m plus n. If we add this term, then it is a 6 divided by 2, that is nothing but 3. So here 2 as it is, here 2a bracket square, gamma of 5 by 2 is nothing but 3 by 2, then 1 by 2 into gamma of 1 by 2. So it is the under root of 5. And here gamma of 1 by 2 is again under root of 5 divided by gamma of 3 is nothing but 2 factorial. Now see here, this 2, 2, 2. So it is a 2 cube is cancelled with this 2 cube because here 2 square into 2 it is 2 cube. So 2 का जो term है वो cancel out हो जाएगा. Final answer is 3a square 5. ये एरिया था तो इसलिए यूनिट इज स्क्वायर यूनिट. Below the video you can see subscribe button. Click on that subscribe and there in the right hand side bell icon. Click on the icon to get the notification of updated video. In the left hand side there is a Swati Think Mathematics icon. Click on that icon. You will see home page of my channel video playlist. Here in the playlist all the videos are available in the folder form. So if you want video on particular topic, just click on that folder. Thank you. Like, share and subscribe.